Hi students, how are you? Myself Rajun Pandey, PGT Chemistry, Urmila Educational Academy, Basti. I want to take a class for class 9 CBSC. In this class, in this lecture, I want to attend chemistry as a subject. Chemistry as a subject, lecture 1, chapter 1. Chapter 1, name is matter in our surrounding. First chapter name is matter in our surroundings. Firstly, I want to say what is matter. What is matter? What is matter? What is matter? Firstly, definition of matter is anything which contain volume and mass is called as matter. Anything which contain volume, anything which contain volume, for example, that's marker. It is marker. Its contain volume. Its shape is cylindrical and definite mass. So the marker is as a matter. The marker is as a matter. Chair is a matter. Whiteboard is a matter. Shirt is a matter. Everything, for example, everything which contain volume and mass, which contain volume, everything in universe which contains volume and mass is called as matter. For example, books, pens, chairs, animals, plants, etc. That is called as matter. Vapor is a matter. Gases is a matter. Everything which contain volume and mass, या which occupied space and mass is called as matter. Next, first step, what is matter? Clear? Matter, if anything which contain volume and mass is called as matter. Or second definition, anything which occupied space and have mass is called as matter. Next definition, in this critical, firstly I ask you, in this critical time, my institution Urmila Educational Academy provide you learning at home.
That is very good platform. And in this district, firstly, Urmila Educational Academy provide you platform for stay at home and with learning. So enjoy it and take a regular class. Let's start. States of matter. Next topic is states of matter. States of matter. Matter contain three phases. First is solid, second is liquid, and now third is gas. Our phase of matter: solid, liquid, and gas. Solid, liquid, and gas. What is solid? What is liquid? What is gas? Every definition cleared after some time. In this lecture, I cannot explain solid, liquid, and gas because time is limited and supportive time for matter. In this lecture, only I can describe matter. So let's start. I want to say, if you are new in my channel, then subscribe it and press bell icon. Share and comments also. Okay. Properties of matter. Next topic is properties of matter. Properties of matter. Of matter. First properties. What is first properties of matter? Matter is made up of small particles. Second, these particles is small in size. The particles of matter moving constantly. They attract each other. They attract each other. So properties of matter. Properties. Matter is made up of small particles. For example, that is marker or its marker. Marker is smooth. Marker, outer surface of marker is like as smooth, but
in microscope it contains small particles, smallest particles which arranged one by one make marker। मतलब कहने का अर्थ क्या है, आप इस चीज पर ध्यान दीजिए। देखिए साइंस जो है, साइंस कैसे सीखा जाता है, इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिएगा वीडियो एकदम से इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आपको पढ़ना होगा तभी बताइएगा। पता नहीं क्यों हमको लग रहा है हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल मैं मिक्सिंग लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, वैसे आप कमेंट्स में हमको बता देंगे कि इंग्लिश टू इंग्लिश चले या मिक्सिंग लैंग्वेज चले। चलिए देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ, व्हाट इज मैटर। मैटर क्लियर हुआ कि मैटर क्या होता है। मैटर क्लियर हुआ तो मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैटर क्या होती है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। मैटर क्या होते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर आपको बाहर से एकदम से स्मूथ दिख रहा है, चिकना सा दिख रहा है। वाटर है, पानी है, पानी को एक गिलास में भर लीजिए, वाटर को पानी मतलब गिलास में भर लीजिए, आपको उसका सरफेस कैसा दिखता है, स्मूथ दिखता है या कंटिन्यूअस दिखता है। लेकिन कंटिन्यूअस होता नहीं है। ये शर्ट मेरा है, शर्ट के बीच में क्या होता है, गैपिंग होती है। अभी ध्यान से देखा जाए तो शर्ट के बीच में जो धागे होते हैं, धागों के बीच बीच में क्या होती है, गैपिंग होती है। क्योंकि हमारी आंख जो होती है उस इतनी सूक्ष्म चीजों को नहीं देख सकती, इसलिए हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। अगर माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाए, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करने के बाद हाई पावर का माइक्रोस्कोप प्रयोग किया जाए, तब आप देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि ये मार्कर स्मूथ नहीं है और केवल एक ही सब्सटेंस से नहीं मिलकर के बना होता है, बल्कि क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। पार्टिकल्स के बीच बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। यहां पर एक पॉइंट और छूट रहा है, लिख दीजिए, दे कंटेन स्पेस टू ईच अदर। कितनी प्रॉपर्टीज होती है, तो आप जान लीजिए कि मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ये पार्टिकल आप देख पाए या ना देख पाए, मतलब छोटे छोटे, ये मार्कर हुआ, वाटर हुआ या चेयर हुआ, ये व्हाइट बोर्ड हुआ, अगर हम क्या करते हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे हमको दिखेगा, दो पार्टिकल ऐसे दिखेंगे और दोनों के बीच में गैपिंग होगी। तो क्या कहा गया कि मैटर जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। इनका साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। इनका साइज कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होने की वजह से ये हमारी आंख को दिखाई नहीं देते हैं, ये हमारी आंख को दिखाई नहीं देते हैं। अब आप जान लीजिए कि ये एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं, एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स जब कई मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, सब्सटेंस। सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा आपका क्या होता है, कंपाउंड।
दीज आर कंटेन सेम एलिमेंट्स, मतलब अगर एक ही प्रकार का एलिमेंट विद्यमान है या उपस्थित है तो उसको कहा जाता है एलिमेंट। और अगर एक से अधिक प्रकार का एटम है, जैसे आयरन, लोहे का रॉड लिया जाए तो वो आयरन है, या कॉपर का वायर लिया जाए तो ये भी आपका क्या है, एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। एल्यूमिनियम का वायर लिया जाए, ये भी क्या है, एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि कॉपर का वायर जो होता है वो कॉपर से मिलकर के बना होता है। इसमें किसके एटम पाए जाते हैं, केवल कॉपर के एटम पाए जाते हैं। तो कॉपर के एटम जब पाए जाते हैं तो सेम अगर एटम पाए जाते हैं तो उसको एलिमेंट कहा जाता है, और अगर सेम नहीं पाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। जैसे H2O, H2O में किसके किसके एटम है, ऑक्सीजन के एटम है, हाइड्रोजन के भी एटम है। तो सेम तो हुए नहीं, अलग अलग हुए कि नहीं हुए। तो अगर सेम एटम पाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है। और अगर एटम सेम नहीं है, अगर किसी सब्सटेंस में एटम सेम नहीं है तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है कंपाउंड, दैट्स इज कॉल्ड एज कंपाउंड। फिर देखिए, दीज पार्टिकल इज स्मॉल इन साइज, मतलब ये पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होते हैं। इतना छोटा साइज होता है कि आप उसका अनुभूत नहीं कर पाएंगे, उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ये जो मैटर होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, उनमें जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो मतलब स्टे नहीं होते हैं, वो मूविंग होते हैं। क्या होते हैं, वो हर समय मूव करते रहते, चाहे वाइब्रेट करेंगे, चाहे फ्रीली मूव करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मतलब चाहे फ्रीली मूव करें चाहे वाइब्रेट करें, मतलब वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, हर समय क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक ईच अदर को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अटैक करते हैं, रिपेल नहीं करते हैं। अगला लास्ट पॉइंट हमने लिखाया है कि दे कंटेन स्पेस, मतलब टू मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज रहेंगे कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। आप समझ लीजिए कि मतलब जो मॉलिक्यूल्स, अब आप जान लीजिए ये मार्कर देखते हैं, ये मार्कर हमको एकदम स्मूथ दिखाई देता है, आर पार नहीं दिखता है, लेकिन अभी इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स अलग, मतलब पार्टिकल क्या है, अलग अलग देखेंगे तो इसके बीच बीच में हमको क्या दिखाई देता है, गैपिंग दिखाई देता है। इसके बीच बीच में हमको क्या दिखाई देता है, गैपिंग दिखाई देता है। और गैप दिखाई देता है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे जो है लाइक एज ए बॉल ऐसे अरेंज होते हैं, और बीच बीच में क्या होती है, गैपिंग होती है। तो कहा गया है आपसे कि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, मैटर्स की। मैटर की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक चीज सा क्लियर हुआ कि मैटर जितने भी हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। फिर एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, मैटर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। वो पार्टिकल साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। वो पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, अटैक करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, रिपेल नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं कि ये पार्टिकल जो होते हैं हर समय मोबाइल होते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं, मूविंग नेचर इनका होता है। हर समय ये क्या करेंगे, मूव करते रहते हैं, क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड ना पढ़िए, कहने का अर्थ ये है कि ये हर समय मूव करते रहते हैं। और इनका जो मूवमेंट होता है जिग जॉग होता है। कैसा होता है, जिग जॉग मूवमेंट होता है। कैसा होता है, जिग जॉग। उसी को आप इसके पीछे एक ट्रेजेडी भी हुई थी। एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमान,
उन्होंने वाटर को देखा, वाटर को कहा कि वाटर जो होता है स्मूथ नहीं, कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। लोगों ने मानना इनकार कर दिया, अंत में वो डिप्रेशन में चले गए और अंत में उन्होंने क्या कर लिया, पॉइजन खा करके सुसाइड कर लिया। इतनी घटना है। बाद में लोगों ने माना कि हाँ, वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। बाद में लोगों ने रिसर्च किया तो वही चीज फॉलो होता है। तो इस यूनिवर्स में कोई भी मैटर है तो मैटर क्या होता है कि कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। वो पार्टिकल साइज में कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। यही सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। आप देखिएगा, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, एंजॉय लीजिए लेक्चर का। और फिर आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और प्रेस करिए बेल आइकॉन को, जिससे मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज इतने ही, इतना आप पढ़िएगा। नेक्स्ट कल। शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक्स।